Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6, and you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So continuing chapter number 2, that is globe, map and their uses. So our today's students learning outcomes termed as SLOs are, the first one is to define latitudes and longitudes. हमने आज latitude और longitude define करने हैं. The second SLO is to identify important longitudes and latitudes, and the third SLO is to calculate the time difference between two places with the help of longitudes. So first of all, in the previous classes, longitudes are explained in a detailed manner. So again, here is the repetition of the longitudes. Longitudes are imaginary lines on a globe or a map which divide areas of the earth into different time zones. So longitudes also gives us the direction of east and west, and there are 360 degrees of longitude, and longitudinal line of 0 degree is known as the prime meridian. So here in the diagram you can see clearly that the line that originates from the North Pole, which is red in color, I am marking it again on this red line. This is moving towards the South Pole, and this is known as prime meridian. Here the longitude is termed as at 0 degree. So it divides the world into the eastern hemisphere and the western hemisphere. So 180 degrees of longitude west and 180 degrees of the longitude east. So from the center of the map, the prime meridian starts from the North Pole and ends at the South Pole. जिस तरह मैंने यहाँ से ड्रॉ किया कि नॉर्थ से लेके साउथ तक जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की, that is basically the prime meridian, that is 0 degree. ये longitude का एक लाइन है, लेकिन उसी के along आपको ये lines नज़र आ रहे हैं जो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं और साउथ पोल पे एंड होते हैं. that is 10 degree, that is 20 degree, that is 30 degree, but that is what? That is towards the eastern hemisphere. क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्लोब को डिवाइड करता है, एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दूसरी तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो इन द सेम वे 180 डिग्री एंगल्स जो लाइंस हैं वो यहाँ पर हैं, और 180 डिग्रीज आपके पास जो लाइन है वो आपके पास सदर्न हेमिस्फीयर में है. सो द एरियाज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन ऑन द मैप आर in the western hemisphere or in the west, and the areas on the right side of the prime meridian on the map are in the east. Very simple. For example, this is the globe and this is prime meridian जो आपके right side पे हैं, that is basically east. अगर इसको हम north लें और उनके हमारे जो left side पे हैं on the west, ये आपके पास western hemisphere है जो आपके left side पे है. The prime meridian passes through Greenwich, a town in England. So the time zone that are represented by longitudes are recorded as Greenwich Mean Time. चूंकि ये आपके पास जो prime meridian है, ये जहाँ से पास होता है, ये लंदन का एक आपके पास टाउन है जिसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं. So that is why जो टाइम कंसिडर हम करते हैं, that is Greenwich Mean Time. It is also abbreviated as GMT. The GMT is the standard time. So the earth rotates from west to east. That is why the sun appears first in the areas that are east of the prime meridian. The longitudes at the east of the prime meridian are ahead of GMT. For example, the time zone of Pakistan is 5 hours ahead of Greenwich. So it is written as GMT plus 5. So जितने भी countries हैं वो ईस्टर्न साइड पे हैं,
यहाँ पर GMT ऐड होता है जो ही आप ईस्टर्न साइड पे मूव करते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न साइड पे है ये माइनस होता है जब आप उसके लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं या वेस्टर्न साइड। सिमिलरली यहाँ पर लिखा गया है द लॉन्गिट्यूड्स एट द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर बिहाइंड द GMT and each time zone represents time difference of 1 hour. So basically 24 hours are there in a day, so there are 24 time zones. This is the beautiful example. ये जो रेड लाइन आपको बीच में नजर आ रही है, दिस इज प्राइम मेरिडियन, और ये आपको 1 और 2 जो नजर आ रहा है, दिस इज GMT +1, this is +2, this is +3, this is +4 and so on. And here this is, these numbers are in negative, in minus. So this is Pakistan. तो पाकिस्तान को आप जब देखें, ये लाई जो कर रहा है 5 में लाई कर रहा है, that is why पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम PST कहते हैं, दैट इज GMT +5। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो टाइम जोन है, जो ग्रीनविच यहाँ लाई कर रहा है, इससे 5 घंटे जो हैं वो हम ऐड हैं, हम आगे हैं, और ग्रीनविच हमसे 5 घंटे पीछे हैं। इन द सेम वे हम अगर यहाँ पर -5 वाला पोर्शन लेते हैं, दिस टाइम जोन, सो ये जो है दैट इज GMT -5। सो ये एरिया GMT से 5 घंटे पीछे है। सो पाकिस्तान और इस पोर्शन का जो डिफरेंस होगा -5 और ये यहाँ से +5, सो इनके बीच में 10 आवर्स का या 10 घंटों का डिफरेंस होगा। सो अगर पाकिस्तान में इस वक्त दिन के 10 बज रहे होंगे, दैट इज 10 AM, सो वहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, दैट इज 12 AM, that is the difference is of 10 hours. Again, calculating the time difference between two places. So in a time zone map, जिस तरह मैंने explain किया, this is very easy to find out the time difference between two places by simply calculating the number of time zones that are between two places. So Pakistan is 14 hours ahead of United States, suppose करें। So at the map, the reading of the time of both these countries is United States must be GMT -9 and Pakistan must be GMT +5. Suppose there is a country A जो है GMT +6 and another country जिसको मैं कंट्री B कहता हूं, वो है GMT -4। सो कितना डिफरेंस होगा इनके बीच में? दैट इज़ वेरी इजी। ये GMT से 6 घंटे आगे है, ये GMT से 4 घंटे पीछे है, सो द डिफरेंस इज ऑफ 10 आवर्स। सो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 10 घंटों का है। नाउ द इंटरनेशनल डेट लाइन। सो द इंटरनेशनल डेट लाइन sits on the 180-degree line of longitude in the middle of the Pacific Ocean and is the imaginary line that separates 2 consecutive calendar days. ये जो आपको बीच में लाइन नज़र आ रही है, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ख़त्म होती है, ये मैं इसके इर्द गिर्द रेड लाइन मैंने लगा ली। ये जो लाइन है दैट इज़ बेसिकली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है और ना इतनी स्ट्रेट है। जो पैसिफिक ओशन में है तो उसके जो राइट साइड पे दिन होगा, ये डिफाइन करता है कि इसके लेफ्ट साइड पे जो दिन है वो इससे एक दिन आगे है। सो दिस इज बेसिकली अ लाइन जो डिफाइन करता है कि एक तरफ अगर संडे है तो दूसरी तरफ मंडे है। ये लाइन जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो डेट यहाँ पर चेंज होते हैं। इट इज़ नॉट अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। Immediately to the left of the international date line, the date is always 1 day ahead of the date immediately to the right of the international date line. इस तरह मैंने कहा कि अगर सपोज करें यहाँ पर फ्राइडे है,
सो डेट लाइन के लेफ्ट साइड पे आपके पास सैटरडे होगी, बिकॉज ये लाइन जो है ये दिन और रात इस तरीके से डिवाइड करती है कि एक दिन यहां पर चेंज होता है, अगर इस तरफ फ्राइडे है तो दूसरी तरफ सैटरडे होगा। दैट इज वाई दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लैटिट्यूड्स, जिस तरह हमने कहा कि लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास कैसे लाइंस हैं, हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं। सो लैटिट्यूड हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हैं दैट डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ। So lines of latitude start at 0 degree at the equator and end at the 90 degrees to the north and to the south poles. So this is what called 0 degree और जिसको इक्वेटर भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये जब एंड होता है 90 डिग्री नॉर्थ एंड यहाँ पर जब एंड होता है दैट इज 90 डिग्री साउथ पोल। सो ये इक्वेटर जो है ये डिवाइड करता है ग्लोब को नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। एंड दीज लाइन्स आर पैरेलल्स, ये पैरेलल लाइन्स होते हैं, और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन्स। सो एवरीथिंग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एवरीथिंग साउथ टू द इक्वेटर इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। सो इसके ऊपर जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ की तरफ है, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस पूरे हेमिस्फीयर को, और ये जो सारा हेमिस्फीयर है इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सो द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल्स बिकॉज ये पैरेलल हैं, एंड इन टोटल देयर आर 180 डिग्रीज। बल्कि लॉन्गिट्यूड कितने थे? यस, लॉन्गिट्यूड 360 डिग्रीज थे। सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट 69 माइल्स और 110 किलोमीटर। सो एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड के दरमियान जो रास्ता है वो तकरीबन 110 किलोमीटर्स है। एंड देयर आर 5 मेजर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड दे आर कॉल्ड एज आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। Here is a beautiful diagram of depicting. Suppose this is a prime meridian, और ये जो आपके पास रेड लाइन में खींच रहा हूँ these are longitudes, बट ये जो आपके पास येलो लाइन है जिसके ऊपर मैं अभी रेड लाइन लगा रहा हूँ, this is what? This is equator 0 degree and this is the latitude line जो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को जुदा करती है। इसके ऊपर 23.5 या 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो आपके पास लाइन आती है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जो आपके पास लाइन है लैटिट्यूड की, दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। अब हम जब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आते हैं तो उसी डिग्री पे 23.5 डिग्री साउथ पे जो आपके पास लैटिट्यूड है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ पे जो आपके पास लैटिट्यूड है दैट इज नोन एज एंटार्क्टिक सर्कल। सो ये आपके पास वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मेजर लैटिट्यूड लाइंस हैं जिनके आपस में डिस्टेंस तकरीबन 110 किलोमीटर है और उनके मुख्तलिफ नाम हैं। So here is the homework from your summer pack. So quickly moving towards your homework, there is the activity number 3 in your summer pack, that is by reading the map of activity 1 जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, measure the distance from Peshawar to Islamabad and Lahore to Quetta। यहाँ पर आपको पाकिस्तान का मैप दिया गया है तो आपने डिस्टेंस मेजर करना है। The second activity number 4 is there is given the map, the globe of the world in the form of a map, और आपको 5 मेजर पैरेलल्स के बारे में बताया गया है कि आप लैटिट्यूड के पैरेलल्स यहाँ पर डिफाइन करें और हर एक का नाम लिखें। जो मैंने अभी आपको 5 पैरेलल्स बताए हैं 1, 2, 3 and 4 and 5। There are questions from the summer pack. If the longitude line is 0 degree is known as prime meridian,
सो वेयर इट लाइज, ये कहाँ लाई करती है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले. एंड व्हाट आर द एरियाज कॉल्ड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ इट. सो कहाँ ये लाई करता है, इट लाइज ऑन ग्रीनविच. आधा मैंने आपके लिए हल कर दिया. अब आपने यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड पे बताने हैं कि आपके पास क्या है. द लॉन्गिट्यूड्स एट द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर अहेड ऑफ GMT. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पाकिस्तान. मैंने आपको कहा था कि जब भी हम ईस्ट की तरफ जाते हैं प्राइम मेरिडियन के, आपके पास GMT ऐड होता है प्लस में. तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने एक्सप्लेन किया, आपने यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना है. द टाइम जोन ऑफ पाकिस्तान इज GMT + 5 एंड दैट ऑफ इंग्लैंड इज GMT + 1. व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है. Here again there is an activity number 5. You have to identify the latitude, longitude of the points mentioned in the map. जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है इस मैप में, this is number A, this is B, this is C, this is D. Where is E? Here is E, this is F, G, H. इन पॉइंट्स पे आपने डिफाइन करना है लेटीट्यूड क्या है एंड लॉन्गिट्यूड क्या है. Here is the homework from your book. These are the multiple choice question. A place 70° east in the Tropic of Capricorn will be dash direction to Pakistan. North पे होगा, west पे होगा, south पे होगा और east पे होगा. The second one is if it is 12 midnight in Greenwich, the time in Islamabad would be GMT क्या है, GMT + 5. Calculate the answer. If a place is 10 time zones away from Pakistan, the time difference from Pakistan would be कितने घंटे, that is very easy. If Pakistan were immediately left to the international date line and India were on the right side, Pakistan would be 1 day behind, 2 days behind, 1 day ahead of India, no difference. The first two option में कोई भी है, you have to identify. Look at the map and tell at which side of the map is the United States located. So पाकिस्तान के किस साइड पे यूनाइटेड स्टेट लोकेटेड है. नो, मैप के किस साइड पे लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट पे है, नॉर्थ वेस्ट पे है, साउथ वेस्ट पे है, साउथ ईस्ट पे. द डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स में कितनी डिग्रीज हैं, 0 हैं, 190 हैं, 360 हैं, 90 हैं. दिस इज वेरी इजी. अगेन देयर इज MCQ नंबर 8. ऑन द वर्ल्ड मैप द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान किस डायरेक्शन में है वर्ल्ड मैप पे. इंटरनेशनल डेट लाइन सिट्स ऑन द मिडल ऑफ what, किस ओशन के मिड में है, that is on the Pacific Ocean. The location of a place where coordinates of 30° south and 90° west would be, कौन सा होगा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक. A place 150° west would be at dash side of the international date line. The length of a day at the tip of the North Pole is, क्या होगा, नॉर्थ पोल पे दिन कितना अरसा होगा, 20 घंटे का होगा, 24 घंटे का, 6 घंटे का, 6 months का. We have studied in the previous chapter in a very detailed manner. Equator is an imaginary line that divides the globe into two halves between what? Between north and south. The prime meridian is an imaginary line that divides the globe into two hemispheres. किन किन हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न. दिस इज वेरी इजी. देयर इज brief answers to the question you have to give. The first one is what would be the drawback if there were no longitudes. अगर longitudes हमारे पास ना होते तो क्या drawback है. The second is the question number 5. How severe do you think can winters be at the equator? The third one is you have to look at the map and list the countries which share the time zone with Pakistan. पाकिस्तान जिस टाइम जोन लाइन पे है उस पे देखें कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज GMT + 5, तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं यहाँ पर आपने लिस्ट करने हैं. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया. द 9th क्वेश्चन इज what are the coordinates of Pakistan. We have already explained it. And there is a comprehensive question, that is what is the difference between prime meridian and international date line. क्या difference है दोनों में, you have to explain.
मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि प्राइम मेरिडियन आपके पास लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पे है और इंटरनेशनल डेट लाइन आपके पास लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री पे है। नाउ यू हैव टू अगेन फर्दर डिफरेंस आपने बताना है। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज जो है वो डिटेल में था, कॉम्प्रिहेंसिव था, आपने उसको तरीके से हल करना है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो थैंक यू अगेन, अल्लाह हाफिज।